اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و مشائخ اسلام، میرے استاذ محترم قاری معظم علی صاحب اور تمامی اہل بستی جتنے بھی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں، آپ اپنا تفریح کا ماحول نہ کریں۔ سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے غنبت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار جھم جھم کر پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزاروں میں 72 تنت تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تنت تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب پتہ پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ سبحان اللہ خود سبحان مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو، توبہ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ اس کی طرف پھر کبھی پلٹنا نہ ہو۔ ایسی توبہ کرو پھر آپ کی اس کی طرف گمان بھی نہ ہو۔ ایسی توبہ کرو کہ اس کا پکا یقین بالکل باندھ لو کہ اس کی طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ایسی توبہ کرو کہ اس کی طرف کبھی پلٹنا نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے توبہ کرو کہ جیسے کہ بھینس کے تھن سے دودھ نکلا ہوا واپس نہیں جاتا گئے، اس طریقے سے تم توبہ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بار حضرت حدیث پاک میں حضرت ابو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ رہا کرتا تھا اور اس کی بہت بڑی سلطنت تھی، بہت زیادہ بڑی سلطنت، اور اس کی سلطنت میں ایک جادوگر رہا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بہت عمر دراز ہو گیا، یعنی اس کی آخری عمر پہنچنے کو آئی، تو اس بادشاہ کی بارگاہ میں گیا اور عرض کی، اے بادشاہ تو میرے لیے ایک بچہ، ایک ایسا بچہ دے جس کو میں ہنر سکھا سکوں تاکہ تیری حکومت چلا سکے۔ جی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ایک بچہ مہیا کر دیا اور اس کے لیے کہہ دیا کہ تو وہاں جانا اور علم دین حاصل، مطلب تو جادو حاصل کرنا، جادو کو سیکھنا۔ اب وہ بچہ جاتا ہے اور جانے کے بعد جب وہ راستے میں جاتا ہوتا ہے، اس وقت دیکھتے ہیں کہ وہ راہب، یعنی ایک راہب راستے میں ملتا ہے اس بچے کے لیے۔ وہ بچہ راہب کی بات سننے لگتا گئے، اور جب بات سنتے سنتے مطمئن ہو جاتا گئے، پھر اس کے بعد راہب کے پاس جاتا گئے اور پھر راہب اس کے لیے مارا کرتا گئے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بادشاہ کی بارگاہ میں آتا گئے تو بادشاہ پوچھتا گئے کہ پھر بادشاہ کی بارگاہ میں جاتا گئے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، گزرنے کے بعد
वो राहिब पर मुतमईन हो गया, यानी राहिब की बातें उसके दिल में गहर कर गईं। इस तरीके से बहुत ज्यादा उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो गई अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और फिर उसने कहा कि राहिब से कहा कि मुझे खौफ है कि मुझे अगर मैं लेट हो जाता हूँ, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाता तो जादूगर मुझे मारता गए, और अगर मैं उधर लेट हो जाऊं तो मुझे बादशाह मारता गए। तो उस राहिब ने कहा कि अगर लेट हो जाओ वहां पे जाने से तो ये कह देना कि बादशाह ने रोक लिया था, अगर बादशाह तुमसे पूछे तो कह देना कि राहिब ने रोक लिया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे ही वो इल्म हासिल करता रहा। एक अरसा गुजर गया, गुजरने के बाद जब वो देखता गया कि एक रास्ता है, रास्ते पे एक बहुत बड़ा जानवर है, इतना बड़ा जानवर कि उससे लोग हट करके दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। उसने कहा क्यों ना आज इल्म को नापा जाए, इल्म को आज देखा जाए कौन हक पर है, कौन सच्चाई पर है, कौन हक पर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसने कहा कि अगर जादूगर का इल्म यानी जादूगर का जो इल्म भारी है या राहिब का, उसने कंकड़ी लेने के बाद कहा कि मैं ये इसको जादूगर यानी राहिब की तरफ से मारता हूँ, अगर वो अल्लाह के हुक्म में, अल्लाह के नजदीक किस में ज्यादा पावर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसने मारी कंकड़ी, और कंकड़ी मारते ही वो जानवर हलाक हो गया। फिर लोग उस रास्ते से जाने लगे, लोगों में बहुत ज्यादा बात मशहूर हो गई, और वो ऐसा होने लगा कि वो अंधों को और नाबीनाओं को और कोड़ियों को भी शिफा देने लगा। लोग उसके पास जाते थे और शिफायाब होते थे। एक बार की बात है, जब उसके बादशाह के वजीर को ये मालूम हुआ तो वो बहुत से सारे तोहफे लेकर के उसकी बारगाह में गया। जाने के बाद कहा कि अगर तुम मुझे ठीक कर दे तो मैं तुझे दौलत से नवाज दूंगा, बहुत सारी दौलत दूंगा। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं तो नहीं ठीक कर सकता, मैं तेरी बीमारी को वापस नहीं दिला सकता, मगर अल्लाह तबारक व तआला, तू अल्लाह पर ईमान ले आ, अल्लाह तबारक व तआला तेरी आंखों को सही कर देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आता गए, और फिर वो देखते हैं कि उसकी आंखें सही हो जाती हैं। वो बारगाह यानी बादशाह के दरबार में बैठता गए, और जिस तरीके से हर रोज बैठा करता था उसी तरह फिर बैठा। और बादशाह ने फिर कहा तेरी आंखें कैसे वापस आई, तेरी आंखों की रोशनी कैसे वापस आ गई। तो उसने कहा कि मेरी आंखों की रोशनी मेरे रब ने दी है। तो बादशाह जलाल में आ गया और कहने लगा, ए वजीर, मेरे सिवा तेरा और कोई भी खुदा है, मेरे सिवा कोई और भी तेरा पालनहार है। उसने कहा वो जो तेरा और मेरा पालने वाला है, उसने मेरी आंखों को रोशनी दी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना ही सुनना था, वो बहुत ज्यादा गज़बनाक हुआ और उसे घसीटता हुआ ले गया। ले जाने के बाद कैद खाने में डाल दिया, और बहुत तरह की इज़ाएं देने लगा, बहुत ज्यादा तकलीफें देने लगा। इस तरीके से तकलीफें दी कि बहुत ज्यादा इतनी तकलीफें दी कि उसे बताना पड़ा कि फला बच्चे ने मुझे शिफा दी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उस बच्चे को बुलाया गया। दरबार में जब हाजिर हुआ तो कहा बादशाह ने, ए मेरे बेटे, तूने इतना इल्म हासिल कर लिया, इतना जादू हासिल कर लिया कि तू लोगों को, नाबीनाओं को सही कर देता है, कोड़ियों को शिफा दे देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस बच्चे ने कहा कि मैं कोई शिफा नहीं देता, मैं किसी को कोई दवा नहीं देता, मगर जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना ही कहना था। बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इतना गुस्से में आ जाता है, फिर उसे पकड़ता है, खींचने के बाद उसे फिर तकलीफें देने लगता है, बहुत ज्यादा तकलीफें देता है, इतनी तकलीफें देता है कि फिर भी उसे बहुत ज्यादा तकलीफें देने के बाद फिर उससे पूछता है कि तुझे किसने बताया। तो फिर वो राहिब का पता बताता गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर राहिब को बुलाया जाता गए और राहिब से कहा जाता है तो कि तू अपने दीन से वापस हो जा। राहिब को जब दरबार में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तू अपने दीन से वापस हो जा, तो वो कहता गए कि मैं नहीं वापस होऊंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर जब उसके लिए बादशाह हुक्म देता गए कि आरा मंगवाया जाए, आरा मंगवाने के बाद कहा जाए कि इसके आधे धड़ को जमीन में दबा दिया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जमीन में दबा दिया जाता गए। फिर उसके बाद में कहा जाता है कि तुझे एक बार और मौका दिया जा रहा है कि तू वापस हो जा अपने दीन से, तू वापस हो जा अपने दीन से। बार बार उससे कहा जा रहा है, उसने कहा मैं अपने दीन से वापस नहीं आऊंगा। तो उसके लिए उसने कन्नासों को हुक्म देता गए और कहता है इसका बीच में से धड़ आधा आधा अलग कर दो।
अल्लाह अकबर। फिर भी वो इस्लाम से वापस नहीं हुआ। फिर देखता गए इस तरीके से, फिर उससे राहिब से कहता गए, अपने उससे वजीर से कहता है कि तू वापस हो जा। वो वापस नहीं होता, वापस नहीं होता है। फिर उसके लिए भी यही हुक्म देता है कि इसको भी बीच में से आधा आधा अलग कर दिया जाए। फिर उसके बाद बच्चे को बुलाया जाता है, बच्चे से कहा जाता है कि अगर तू ईमान से न फिरा तो तेरा भी यही अंजाम होगा जो इन पहले वालों का हुआ, जो इन दोनों का हुआ, तेरा भी वही अंजाम होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर वो बच्चा वापस नहीं होता है और कहता है कि मैं अपने दीन से वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसके लिए बादशाह हुक्म देता है कि एक गिरोह को बुलाया जाए, एक पुलिस वालों को बुलाया जाता है, बहुत ज्यादा लश्कर को बुला के लेकर के आता है और कहा जाता है कि फला पहाड़ी पर ले जाओ और बड़ा पहाड़ी पर चढ़ा करके उसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अल्लाह तबारक व तआला, वो बंदा फिर ईमान से नहीं फिरा, फिर उसके लिए हुक्म होता गया कि इसके लिए फला पहाड़ी पर ले जाओ और अगर ये वापस आ जाए दीन से तो ले आना, वरना इसे वहीं से फेंक देना। अल्लाह अकबर। इतना ही कहना था। वो तमाम ही लोगों को ले जा करके पहाड़, यानी जितने लोगों को, सिपाहियों को जो मुनक़दा किया था, तमाम ही को लेकर के पहाड़ी पर चला गया। फिर जब पहुंचता है पहाड़ी की सबसे ऊंची वाली चोटी पर चला जाता गया और कहता है, ए मेरे अल्लाह, तू ही इसका वाली है, तू चाहता है कि मेरी मौत हो जाए तो इसी में रजा है, तेरी रजा में मेरी रजा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पहाड़ तरतराता गए और पूरे जितने भी लोग उसके साथ गए थे तमाम हलाक बर्बाद हो जाते गए। फिर वो बच्चा फिर दोबारा बादशाह के पास आ जाता गए और फिर बादशाह पूछता है कि बोलो कहाँ गए जो तेरे पास है? तो कहा कि वो चले गए, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हलाक को बर्बाद कर दिया। फिर बादशाह कहता गए कि इसके लिए फिर हुक्म होता गए, एक गिरोह को फिर तैयार किया जाता गए कि फला कश्ती में ले जाओ और 20 समंदर के आगे, 20 समंदर में जाकर के इसको गिरा देना, उसमें डुबो देना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसे ले जाया जाता गए 20 समंदर में। जब कश्ती पहुंचती है, पहुंचने के बाद जब वो कहता है बच्चा, ए अल्लाह तबारक व तआला, तेरी इसी में रजा है, अगर तू चाहता है कि इसी तरीके से मेरा इंतकाल हो, तू चाहता है कि इसी तरीके से मैं इस दुनिया से जाऊं, तो इस तरीके से तेरी रजा में मेरी रजा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कश्ती पलटती है और तमाम ही लोग हलाक बर्बाद हो जाते हैं, मगर वो बच्चा सलामत रहता है। फिर वो बच्चा फिर बादशाह की बारगाह में आ जाता है। आने के बाद फिर बादशाह कहता है कि तुझे क्या हुआ, तुझे मौत क्यों नहीं आती? उसने बादशाह से कहा, अगर तू चाहता है मुझे मारना तो तू जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। उसने क्या किया जाए? उसने कहा कि एक मजमे को जमा किया जाए, पूरे शहर में गश्त किया जाए और एक मुकर्रर दिन के लिए तमाम लोगों को जमा कर दिया जाए। जमा करने के बाद सबको इकट्ठा कर दिया जाए। कहा फिर तेरी अपनी कमान, अपने हाथ में तीर कमान लेना, फिर जब मैं कहूँ तब कहना, और जब तीर चलाए तो ये कहना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अल्लाह के हुक्म से इसको मारता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना ही कहना था। उसने तमाम ही लोगों को जमा कर दिया। जमा करने के बाद एक मुकर्रर दिन के जब आया तो तमाम ही लोग जमा हो गए और देखने लगे। हर तरफ देखते हैं कि आदमी ही लोग थे। तमाम पूरी मुल्क में बहुत ज्यादा शोर मच गया और तमाम ही लोग जब जमा हुए तो उस वक्त जब उसने कहा कि अब क्या किया जाए, उसने कहा कि मुझे सूली दे दी जाए। सूली पर चढ़ाया गया और कहा गया कि अब तीर चलाओ, और उसने कहा कि जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर मेरे अल्लाह के हुक्म से मुझे कुर्बान करना चाहते हो तो मैं कुर्बान होने को तैयार हूँ। जब वो तीर निकालता है और तीर जब गले के छू कर